Hello everyone, welcome to Maneuver Education. Today we are going to solve questions from Law CET 5 years program exam conducted by Maharashtra CET on 2nd August. This will be very helpful for those who are preparing for such exams in the coming years. So before we are going to start this session, let's talk about the batches launched by Maneuver Education. So if you are preparing for Maharashtra Law CET 3 or 5 years program, CLAT, SLAT, AILET, BHU Law, or LSAT and any other exams for law, you can join our program. Here you will get the live classroom, ebooks, shortcuts, doubt class, recorded video lectures, topic test, mock test, WhatsApp group, and 10,000 plus questions, mentorship. So if you are Mumbai based, you can join our classroom coaching at Dada Center, Borivali Center and Vasai Center. You can call on 8828581455 and you can check the link in the description. So let's start, guys. So we have the first question. Some workers complete a work in 15 days and if number of workers increase by 3 by 5, then how many days required to complete the work? This is the question. ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में on 2nd अगस्त. तो आप इसे अज्यूम कर सकते हो कि let the some workers be X, because यहाँ पे number of workers ऐसे स्पेसिफाई नहीं है, तो आप number of workers को X अज्यूम कर सकते हो and they are completing the whole work in 15 days. I hope you know the formula of time and work. M1 into D1 upon W1 is equal to M2 into D2 by W2. M1 ये group of men है, D1 the number of days, W1 is the work completed by them and same second situation के लिए M2, D2 and W2. ये formula आपको याद रखना है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो इजीली. तो some workers are completing the work, तो आप अज्यूम कर लो कि x number of workers are there. They are completing the whole work in 15 days and if they are completing the whole work, you can assume that the work is 1. एक काम को पूरा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है. Is equal to, if the numbers are increases by 3 by 5, तो x is the previous number, पहले ये नंबर था, अब ये नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया यानी कि 3 by 5x हो गया. तो अब आप इनका सम फाइंड करोगे तो ये मिलेगा आपको 8 by 5x, यानी कि नाउ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 8 by 5x एंड द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज दे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क. लेट्स अज्यूम दैट द डे इज d. okay, so when you solve this part and since they are also completing the whole work, you can assume the work 2 is 1. x to x cancel, d is equal to हो जाएगा आपका 15 into 5 by 8 is equal to 75 by 8. That means it is equal to 9 whole 3 by 8. एक ये मेथड है जिससे आप कर सकते हो x को अज्यूम करके, या फिर आप कोई भी एक नंबर ले लो, आप उससे सॉल्व कर सकते हो. सपोज कर लो कि नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 10 है, 10 ही वर्कर्स हैं एंड दे आर कंप्लीटिंग द होल वर्क इन 15 डेज. यू कैन ऑल्सो अज्यूम कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजिंग बाई 3 by 5, तो आप 10 का 3 by 5 फाइंड कर लो. ये 2 टाइम्स में 3 2 जा 6, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 6 इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पहले 10 थे अब हो गए 16. तो इनको कितना टाइम लगने वाला है, यानी कितना डेज लगने वाला है, ये आपको फाइंड करना है. तो ये डेज इक्वल टू हो जाएगा 10 into 15 by 16 और इसको आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 75 upon 8. राइट एवरीवन, एंड दिस इज नथिंग बट 9 whole 3 by 8. दिस इज योर राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, सिंप्लीफाई करने को पूछा गया था. आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, बस आप क्या करो, डेसिमल्स को रिमूव कर दो, आप इजीली कैंसिल कर सकते हो. जब आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे ये मिलेगा 14, यहाँ से डेसिमल रिमूव करने के बाद मिलेगा 15 और यहाँ से डेसिमल रिमूव करने के बाद मिलेगा 2. राइट एवरीवन, और चूंकि आपने देखा डेसिमल रिमूव करने के बाद 2 डिजिट्स थे, यहाँ पे 2 डिजिट्स, यहाँ पे 3 डिजिट्स और यहाँ पे 2 डिजिट, तो टोटल 3 to 5 plus 2 यानी कि टोटल 10 to the power 7 ये आएगा डिनोमिनेटर में वैल्यू. एंड सिमिलरली यहाँ पे आप 35 लिख सकते हो, यहाँ पे 12 एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 10 raised to, कितने डेसिमल्स के बाद डिजिट्स हैं आपके 1 2 3 1 2, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, टोटल है आपके पास 5 डिजिट, तो यहाँ पे लिख दो आप 10 raised to 5. क्लियर. अब कैंसिल करते हैं. 7 2 जा 7 5 जा 5 3 जा 3 से 12 4 टाइम्स में एंड 2 2 जा 4 कैंसिल.
10 रेज टू 5 बचा आपके पास, यहाँ 10 रेज टू 7 है एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू -2. दिस इज योर राइट आंसर. सिंपल. तो आपको क्या करने थे, बस आपको सिंप्लीफाई ही तो करने हैं और कुछ नहीं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव in this question, Amit bought a watch for rupees 1500 and sold it for rupees 1750 rupees. So gain percentage is, इनमें से आपको बताना है. तो आप देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है. कॉस्ट प्राइस है सर 1500. सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस 1750 रुपीज. तो कितना एक्स्ट्रा में सेल किया, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट आप बोलोगे सर हो रहा है 250 रुपीज का. इतना ही तो प्रॉफिट हो रहा है. आपको फाइंड क्या करना है? गेन परसेंट. यू नो द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट और यू कैन से प्रॉफिट परसेंट. गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100 और यू कैन से प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. सो प्रॉफिट है सर 250, कॉस्ट प्राइस वॉज 1500 इंटू 100, 100 to 100 कैंसल. सो 250 अपॉन 15 इज नथिंग बट 50 अपॉन 3. राइट एवरीवन? 50 upon 3 is equal to 16.67%. That's it. This is your right answer. Clear? ये आपका एक मेथड है. अदरवाइज आप सिर्फ इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे बहुत फास्ट. इतना टाइम नहीं लगता आपके एग्जाम में सॉल्व करने में. आप देख सकते थे कि ये है सर कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस. 250 हमें प्रॉफिट हो रहा है और कितने पे प्रॉफिट हो रहा है? इस कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 1500 पे प्रॉफिट हो रहा है. जब आप इसे कैंसिल करोगे 5 टाइम्स में ये मिलेगा 5 टाइम्स में 30. ये भी कैंसिल करने के बाद मिलता है आपको 1/6 एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1/6 कैन बी रिटन एज 16 होल 2/3 और यू कैन से 16.67%. दिस इज योर आंसर. सिंपल. तो आपको अगर ये फ्रैक्शन पता है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस. इतना ही टाइम लगता है आपके एग्जाम में सॉल्व करने में, इससे ज्यादा नहीं. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस टर्म और इनको सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आता है ये हमें चेक करना है. आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे टर्म्स x में हैं, हमारे आंसर भी x पे है. तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू, और वो भी आपको ऑप्शंस में भी पुट करने हैं. जिसके भी आंसर मैच कर जाते हैं वो आपके आंसर होंगे. तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं x इक्वल टू 0 पुट करता. 0 पुट करने से क्या होगा कि ये आपके पास आएगा -2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आएगा आपके पास -4 और इनके मल्टीप्लीकेशन मिल जाएंगे आपको कितने? ये मिलेंगे आपको 24. तो आंसर में हमारे पास 24 जिस भी ऑप्शंस के मैच हो रहे हैं दैट विल बी योर राइट आंसर. चेक करते हैं. अगर आपने यहाँ 0 पुट किया ये 0 टर्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा. अगर आपने x के वैल्यूज को 0 पुट किया ये भी 0. तो बचा आपके पास सिर्फ 24. ये आपका आंसर हो सकता है. आप आगे भी चेक कर लो. ये टर्म 0, ये 0, ये 0, आपके पास बचा क्या? -24. ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें +24 चाहिए. ये भी टर्म 0, 0, 0, बचा क्या आपके पास? 35. बिल्कुल नहीं. ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये बचा आपके पास -24. ये भी आंसर नहीं है. तो ओनली 1 इज द राइट ऑप्शन. ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, the most easy one. 24% minus 6% into 4%. We have to find the value of this equation. Clear everyone? So 24% can be written as 24/100 minus 6% can be written as 6/100 into 4% can be written as 4/100 is equal to x. So x is equal to, ये हो जाएगा सर 24/100 minus 6 4 जा 24 upon 10,000. Right everyone? Here you can write 0.24 and here you can write 0.0024. When you subtract it, you will get 0.2376. अब आपको subtract करने तो आता ही होगा, इतना तो मैं expect कर सकता हूँ आपसे. This is one of the most easy question. Right everyone? The first option is the right option. Clear? Let's move to the next question. We have 2.4 meter long wire is cut into 5 equal pieces. Then what is the length of the each piece? That's it. So if you have 2.4 meter long wire and you are dividing into 5 equal pieces, then divide it by 5. Clear? When you divide it, you will get 0.48. Clear है? अगर आपको और अच्छे तरीके से डिविजिबिलिटी
सीखनी है तो आप ये कर सकते हो कि 2.4/5 आप इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा आपका 4.8 और ये बन जाएगा 10। When you divide it by 10 you will get 0.48 मीटर। तो ये है आपका राइट आंसर। सिंपल। तो अगर आपके पास 2.4 मीटर लॉन्ग वायर है और आपको डिवाइड करने हैं 5 इक्वल पीसेस में, जस्ट डिवाइडेड बाई 5। 10 होता तो 10 करते आप। सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और यही आए थे। 30% ऑफ दिस ₹270, ये आपको फाइंड करने हैं। 30% इज नथिंग बट 30/100 इंटू 270। 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. What we have left? 30 into 2, 27. Their multiplication is equal to 81. That's it. This is your right answer, everyone. Clear? This is one of the most easy question. Or you can write it like this. 30% को सर हम 3/10 भी लिख सकते हैं। Into 270 करना है। Of this ₹270. 0 to 0 cancel. Multiply 3 into 27. You will get only 81. That's it. This is your answer. Clear? अब ये क्वेश्चन में थोड़े से आपको टाइम लग सकते हैं क्योंकि आपको फाइंड करने हैं इनके एडिशंस। अगर आप इनके एडिशंस इजीली फाइंड कर सकते हो तो आपको मिलेगा 2.994 माइनस एंड इनके मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको इनके मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो एक मेथड ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1001 एंड डिवाइड बाई, चूँकि आपने डेसिमल को अगर आप रिमूव करते हो तो डिवाइड में 1000 आएंगे। फिर से अगर मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया 1.1 से तो आएंगे आपके पास 11/10 एंड इट इज इक्वल टू 11011 डिवाइड बाई 10,000। व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट 1.1011। सो देयर मल्टीप्लिकेशन इज 1.1011 इज इक्वल टू 2 minus k। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 1.8929 is equal to 2 minus k and k का वैल्यू हो जाएगा 2 minus 1.8929। k का वैल्यू होगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन 0.1071। दिस इज योर राइट ऑप्शन, यानी कि आपका बी बनेगा राइट ऑप्शन एवरीवन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, पहले एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्ट विथ दिस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आपको बोर्ड मास के रूल्स पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो आप ब्रैकेट को भी पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो आप एंड देन ऑपरेट द अदर थिंग्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So if the present age of son, mother and father are 10 years, 30 years and 40 years respectively, after how many years their ages will be in the proportion of 3:7:9? This is the question. So you can say कि सर सन का एज है 10 years, ये है मदर का एज 30 years और ये है फादर का एज 40 years। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, आप ऑप्शन से ट्राई करो। अगर आप 3 years सब में ऐड कर देते हो तो क्या इनका रेशियो 3:7:9 हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो अगर आप 3 ऐड करते हो तो ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा आपका 33 और ये बन जाएगा आपका 43। क्या रेशियो 3:7:9 है? नहीं है, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। अगर आप 4 years ऐड करते हो इन सारे ऑप्शंस में तो सन के एज हो जाएंगे 14, मदर की एज हो जाएगी 34 एंड फादर के एज हो जाएंगे 44। देयर रेशियो 2 से डिविजिबल है 7 टाइम्स में, 17 टाइम्स में और ये 22 टाइम्स में। रेशियो आपका 3:7:9 नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, 5 years। अगर इन सब के एजेस को 5 years इंक्रीज कर दो तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 45। 5 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, 7 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। इन सभी के रेशियो 3:7:9 है। दैट मीन्स कि 5 years इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यू कैन ऑल्सो चेक फॉर 9 years जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर एवरीवन? Now we have the last question. The 5-digit number 9*7*5 is divisible by 11. I hope you know the rule of divisibility of 11. How you check the number is divisible by 11 or not? बस इनके alternate digits के sum और इनके difference या तो 0 होंगे या फिर 11 से divisible होंगे, तो आप बोल सकते हो yes the number are divisible by 11. तो ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन कौन से हमारे पास? 9, 7 एंड 5 आर द ऑल्टरनेट डिजिट्स। अब ये जो स्टार है इनके वैल्यूज फाइंड करना है।
तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये दोनों स्टार अगर मैं 2 ले लूँ, है ना, तो इनके सम यानी इन दोनों स्टार के सम 2 + 2 हो जाएंगे एंड देयर डिफरेंस ऑल्टरनेट सम ऑफ डिजिट्स एंड देयर डिफरेंस क्या मिलेंगे आपको 9 + 7 = 16 + 5 21 - 4 21 - 4 इज नथिंग बट 17 एंड 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। या तो ये 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए और ये दोनों में से नहीं है, तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है। राइट एवरीवन। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर 1 3 एंड 5। आई थिंक दिस शुड बी 11, तो ये दोनों नंबर होने चाहिए क्या 5। राइट एवरीवन। अगर ये दोनों नंबर 5 होते हैं तो 5 + 5 क्या मिलेगा 10 एंड इनके डिफरेंस मिल जाएंगे आपको 11 और 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो ये स्टार 5 होना चाहिए। क्लियर एवरीवन। सो दिस ऑल क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय महाराज CET इन लॉ 5 years exam. So if you are preparing for Maharashtra Law CET exam for 2023 and 2024, you can join our classes. Here you will get the live classes, classroom, books, mock, GD, VAT, interview and mentorship. You can call on 8828581455 for online and live classes. If you are Mumbai based, you can also join our classroom coaching at Borivali, Vasai and Dada Center. You can also subscribe our channel YouTube and the social media platform Facebook, Instagram and Telegram. Kindly check the link in the description for more information everyone. Thank you so much for your attention.